عزیزان گرامی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی قوم کا کوئی قائد نہ ہو تو وہ ایسی بھیڑیں ہیں جن کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے. چار ادھر جائیں گی، چار ادھر جائیں گی، چار ادھر جائیں گی، اور کبھی بھی ان کو بھیڑیا نگل سکتا ہے. جن بھیڑوں کا کوئی نگہبان نہیں، جن بکریوں کا کوئی چرواہا نہیں، ان بکریوں کا کیا ہونا ہے؟ کبھی بھی کوئی درندہ ان کے اوپر حملہ آور ہوگا اور ان کے جتھے کو تتر بتر کر کے رکھے گا. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اسی کرب کے دور سے گزر رہی ہے. میں سیاسی لیڈروں کی بات نہیں کر رہا، وہ نہ خلیفۃ المسلمین بننے کے قابل ہیں، نہ اولو الامر میں سے آتے ہیں. اولو الامر وہ لوگ نہیں ہیں. عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے اس دار فانی سے، تو اس پورے دین کو کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ کہاں چھوڑ کر کے گئے تھے؟ بلکہ صحیح روایات میں ہے اپنے بعد کسی کو آپ نے اپنا جانشین بھی نہیں مقرر کیا. لیکن حدیثیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اس کی تنبیہ فرماتے رہے کہ جو جماعت بغیر سردار کے رہے گی، بغیر قائد کے رہے گی، اس کے لیے نقصان ہے. اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، پوری جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے. من شذ شذ فی النار، اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ الگ ہی جہنم میں جائے گا، وہ تنہا دوزخ میں چلا جائے گا. حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بغیر قائد کے، بغیر لیڈر کے کبھی امت نہ رہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے زمانے میں بھی، جب آخری وقت تھے، بیماری کی حالت میں، کیا امت کو یوں ہی چھوڑ دیا صحابہ کو اپنی اپنی نمازیں پڑھ لو؟ بلکہ فرمایا ابو بکر صدیق امامت کا مصلی سنبھالیں، بغیر جماعت کے مسجد نبوی میں ایک وقت بھی نہ گزرے. امام ہونا چاہیے، بغیر امام کے نہ رہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں. اس لیے میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ یہ خلافت کے تمام معاملات ہوں گے، یہاں پھر رافضی اور سنیوں کے معاملات آتے ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر قائد کے کبھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا. کسی جہاد میں دیکھ لیں، جنگ کے میدان میں دیکھ لیں، خود اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد میں نہیں تشریف لے جا رہے ہیں، کسی صحابی کو اس کا قائد بنا کر بھیجتے تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن نے بھی جو کہا اولو الامر، بغیر تمہارے کسی قیادت کے تمہارے معاملات حل نہیں ہوں گے. ایک کسی لیڈر کا، ایک قائد کا ہونا ہر زمانے میں ضرورت اس کی رہی ہے. اب اگر میں تاریخ کے پنوں کو پلٹوں تو ایک حیرت انگیز بات آپ کو میں بتا دوں. حیرت انگیز بات، میرے مطالعے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 23 سال کا عرصہ، ظاہر سی بات ہے ان کے امام ہوتے ہوئے کسی دوسرے امام کی ضرورت تھی نہیں. آپ کے وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال تک منصب خلافت کو سنبھالا اور امت کی دستگیری فرمائی، نگہبانی کی، جو معاملات آئے اس کو حل کرتے رہے. آپ کے فوراً بعد یہ کرسی خلافت خالی نہ رہی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سنبھالا. 10 سال کا عرصہ آپ نے خلافت کے امور کو انجام دی. پھر آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک انجام دیتے رہے. پھر سیدنا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال اور کچھ مہینوں تک آپ نے اس تخت خلافت کو شرفیابی عطا کی. اور اس کے بعد معاملات ملوک اسلام پر آیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال تک. ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اموی خاندان کہا جاتا ہے. اس کو کون سا خاندان کہتے ہیں؟ اموی خاندان. کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، اموی خاندان تقریباً یہ 90 سال تک خلافت کے معاملات، اگرچہ اس کو ہم خلافت نہیں کہتے لیکن بنام خلافت تو ضرور تھی. جیسے آج اسلامی ممالک ہیں بہت سارے، وہ بنام اسلامی ہیں.
नाम के एतबार से हैं, पूरा इस्लाम तो उनके अंदर है नहीं। इसी तरह तकरीबन 90 साल तक कोई ना कोई खलीफा होता रहा। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, और उसके भाई होते हुए इसी उमवी खानदान में जो जय्यद खलीफा आए उमर इब्न अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु। बाज फुकाए कराम ने उनको 5वां खलीफा राशिद भी कहा है। हजरत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज बहुत ही आदिल और मुंसिफ खलीफा थे। 90 साल यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अरसे वफात के 30 साल तक तो खुलफाए राशिदीन थे, 20 उसके बाद 90 साल तक उमवी खिलाफत चलती रही। उनके बाद खिलाफत अब्बासिया, ये बनु अब्बास, इनकी खिलाफत तकरीबन 550 साल तक चलती रही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई खलीफा इस्लाम ना रहा हो। तवज्जो चाहता हूं और कैलकुलेशन करते जाना। तकरीबन 90 साल उमवी खिलाफत रही, 550 साल खिलाफत अब्बासिया। ये तारीख इस्लाम है। मैं इख्तिसार के साथ बता रहा हूं, इजमालन बता रहा हूं, पूरी डिटेल में नहीं कितने खलीफा है। 550 साल और आसपास हो सकती हैं कुछ। उनके बाद फिर खिलाफत उस्मानिया जो तुर्की की सरजमीन से निकली, और इन्होंने खिलाफत को बहुत वसाअत दी। उस जमाने में जो खिलाफत फैली खिलाफत उस्मानिया के नाम पर, वो आज के 40 कंट्रियों पर उनकी खिलाफत कायम थी। इसमें 3 बड़े आजम शामिल होते थे, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। इसका बहुत सारा हिस्सा खिलाफत उस्मानिया में आता। एक खलीफा इस्लाम होता था और इलाके के गवर्नर अलग होते थे। हर मुल्क का गवर्नर, हर सूबे का गवर्नर अलग होता, लेकिन मरकजी कायद एक होता था। वो 550 और 90 साल कितने हुए? तकरीबन 640 साल। और फिर ये 650 साल कितने हुए? तकरीबन 1290 साल। ये तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूं। उसके बाद ये खिलाफत तुर्की की जो खिलाफत उस्मानिया के नाम पर थी, अपने 650 साल मुकम्मल करते हुए 1340 या 1339 हिजरी, 1340 या 1339 हिजरी या फिर ईसवी तारीख के मुताबिक 1921 1922 के आसपास ये ख़त्म हो गई। और आज 2020 है। पूरी दुनिया में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ज़ाहिरी से लेकर 1920 तक मुसलमानों में कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई खलीफा ना रहा हो। पिछले 100 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा बगैर खलीफा के कायम है, बगैर खलीफा के चल रही है, बगैर कायद के चल रही है। इस पर कभी किसी की तवज्जो नहीं होती। और ये लफ्ज मैं इतना डेंजर छेड़ा हूं जो आज बहुत सारे दुश्मनाने इस्लाम के पेटों में दर्द शुरू कर देगा, मुझे मालूम है। इसलिए कि 2 लफ्ज कभी ये किसी मुसलमान की जुबान पर आने नहीं देना चाहते, 2 लफ्ज, और वो दोनों मैं आज जुमा में बोलूंगा। वो ये चाहते हैं कि ये 2 लफ्ज हम तारीख से मिटा दें इसको। ये 2 लफ्ज कभी कोई मुसलमान बोल ना सके। 1921 पर जब ये खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई, डेमोक्रेसी के नाम पर हर मुल्क में जमहूरियत आई, और आज भी पूरी दुनिया में तकरीबन 57 कंट्रीज इस्लाम के नाम पर हैं, लेकिन इनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं, या आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। चंद होंगे मिले जुले, लेकिन एक दूसरे के खून के दर पे हैं। सऊदी कतर को देखना नहीं चाहता, बल्कि इतना मुकाता, इतना बायकाट है कि उधर पड़ोसी मुल्क है कतर, वहां की कोई चीज सऊदी में आ नहीं सकती, वहां की कोई फ्लाइट इसके हवा में उड़ नहीं सकती, ऐसी पाबंदियां। मिस्र कतर को नहीं देखना चाहता, यूएई कतर को नहीं देखना चाहता, ये मुस्लिम ममालिक आपस में। और तो और जिसके मुतालिक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी पाक में दुआ फरमाते रहे और इरशाद फरमाते रहे कि दुनिया में सबसे नरम दिल वाले लोग अगर कहीं होते हैं तो मुल्क यमन में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं इस पर। यमन की बरकत के लिए, यमन के दुआओं के लिए, मुल्क शाम के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाई। जो मरकज इस्लाम आज लोग कहते हैं सऊदी अरब के, उन शहरों को
वहां पर हुकूमत पर कायम कोई भी बादशाह ना मुल्क शाम से ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है, ना यमन से, बल्कि पिछले कई सालों से यमन पर तबाही की तबाही ये मचा कर रखे हैं। आज तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर बेघर हैं। यमन टूट चुका है। अगर दोबारा अब यमन को अपने पांव पर खड़ा होना है तो अगले 50 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। ये किसने तोड़ा? सऊदी अरब ने तोड़ा। अपने ड्रोन मारे, अपने मिसाइल मारे, मुल्क शाम तहस नहस हो चुका है। वहां पर 10 लाख से ज्यादा बच्चे बेघर हैं। वहां पर दवाइयां नहीं है। किसने मारा? कौन मार रहा है? सऊदी अरब वहां पर पहुंचा हुआ। यह मुस्लिम ममालिक का आपस में जो एक दूसरे को मारना तोड़ना है, अजीजान गिरामी, खिलाफत के जमाने में कभी ऐसा नहीं होता रहा, कभी ऐसा नहीं होता रहा। बल्कि हमारी तो ताकत यह थी कि दुश्मन इस्लाम कुछ भी इस्लाम के मुतालिक बोलने से भी 1000 बार सोचा करता था। एक आवाज पर ये 40-50 मुल्कों के नौजवान जमा हो जाते हैं। ये इत्तेहाद था हमारा। मैंने तारीख बता दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात पाक 632 ईस्वी, 632 ईस्वी से लेकर 1920 तक कभी कोई जमाना मरकजी कायद से खाली नहीं रहा। ये हमारी कम नसीबी है कि पिछले 100 साल से हम बगैर कायद के चल रहे हैं, बगैर कायद के चल रहे हैं। मैं इसके नताइज आपके सामने रखूंगा कि होता क्या है बगैर कायद के रहने से। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। इंस्टॉलमेंट में सफाया करेंगे, हो भी रहा है। मैं आज ही अपने मुल्क के हालात देख रहा था। बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने वाले हैं। कई जगहों पर सियासी माहौल गर्म है। मेरे अजीजों, मुझे सीट कुर्सी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूं यहां सारी जात, सारी बिरादरियां अपना अपना गठबंधन बना रही हैं। मैंने देखा कि मुसलमान इसमें कहां हैं। तकरीबन ये वो स्टेट है जहां पर दूसरी बड़ी बिरादरी मुसलमानों की है, दूसरी बड़ी बिरादरी, और छोटी सी छोटी बिरादरियां जिनका ताल्लुक 3% है, 5% है, उनका अपना एक लीडर है और वो साजबाज कर रहा है बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ कि इतने सीट हमें दे दो तो हम तुम्हारे साथ गठबंधन करेंगे। मरकजी हुकूमत पर कायम पार्टी, रूलिंग पार्टी के साथ बिहार के स्टेट में 3% रखने वाली तादाद का एक लीडर सीटों के लिए ये साजबाज कर रहा है। पूरे स्टेट में देखा, कहीं कोई ऐसी हमारी क़ियादत नजर नहीं आ रही जो बनाम मुसलमान बात कर सके। देखा हर पार्टी में ये टुकड़े टुकड़े मौजूद हैं, हर पार्टी में। बीजेपी में भी यही झंडे लहरा रहे हैं, कांग्रेस में ये झंडे लहरा रहे हैं, वहां जितनी लोकल पार्टियां सब में मुसलमान मौजूद हैं। होता यही है मेरे अजीजों, मैंने कहा जो शेर, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। आज हर कोई तुम्हारा इस्तेहसाल कर रहा है। मेरी ये बातें इन्हें चुभेंगी, ये चाहते हैं डिवाइड एंड रोल। और अगर मैं मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करूं तो कल का ये मीडिया मुझे ये पेश करेगा ये भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना है। हम अगर यूनिटी की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, तो डर इनको है कि पूरे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो फिर हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, इनके मुतालबे सुनने पड़ेंगे। इसलिए इनको हर पार्टी में टुकड़े टुकड़े करके रखो। अजीजान गिरामी वकार, आज हमारी पोजीशन यह है, दलित बिरादरी का अगर लीडर अपने तमाम कम्युनिटी को मुत्तहिद होने की बात करे तो कहेंगे वो अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा है, कोई मसला नहीं। सारे दलितों को जमा करने की बात कर रहा है। ब्राह्मण अपने स्टेज से कहे, ठाकुर अपने स्टेज से कहे कि सारे ठाकुर जमा हो जाओ एक ही झंडे के नीचे, तो लोग उससे कहेंगे वो अपनी कम्युनिटी को जमा कर रहा है। अफसोस यहां है, अगर मुसलमान ये कह दे कि सारे मुसलमान जमा हो जाओ तो कहेंगे भड़काऊ भाषण है, सबको जमा करके ये जिहाद का ऐलान करना चाह रहे हैं। हमारा जमा होना भी इनके लिए तकलीफ दह है, समझो मेरे अजीजों। इसीलिए इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान हो।
तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम आज छोटे से टुकड़े पर राजी होकर के चले जाते हो, छोटे छोटे टुकड़ों पर, छोटे छोटे हड्डियों पर राजी होकर के चले जाते हो, तुम्हारी ये हैसियत नहीं। इकबाल ने कहा, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं आज ये महसूस करता हूं कि जो दो लफ्ज उनसे, इन दो लफ्जों से जिनको तकलीफ है, वो मैं आपको दोहरा रहा हूं। अजीजा ने गिरामी, 1920 या 21 या इसी असना की बात है, 1920-21, जो आज 100 साल का अरसा होने आ रहा है। अंग्रेजों का एक बड़ा दानिश्वर है, उसने कहा था कि हम ये तमाम चीजें खत्म करेंगे। एक आलिम दीन है, उन्होंने इस रिपोर्ट को नकल किया है, पेश किया है। उसके साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई, वो कहते हैं, तुमने तो खिलाफत तुर्की की ये सब खत्म किया, जिसको ओथमान एम्पायर कहा जाता है, उस्मान एम्पायर, ये खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, सिर्फ हमारा मकसद हुकूमत खत्म करना, बादशाह बदलना नहीं था, कोई दूसरा लीडर हम खड़ा करेंगे। जब वो तुर्की में मुस्तफा कमाल बादशाह को खड़ा कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि आपने तो बादशाहत को खत्म कर दिया, सुल्तान जो खिलाफत उस्मानिया का था उसे मार खत्म कर दिया, जिलावतन कर दिया, फिर दूसरे मुसलमान को ही बिठा रहे हो, क्या फायदा। उन्होंने कहा, हमको मतला मुसलमानों से नहीं, हम बिठाएंगे किसी मुसलमान को ही, उसको जिसके मुंह में हमारी जुबान होगी। हमें जो टेंशन है वो दो लफ्ज हैं, ये तारीख से मिट जाए इनके, और इसी से आज तक हम हारते रहे हैं। कितने सालों से, 1300 साल से हम हारते रहे, यही दो लफ्ज इनके अंदर मौजूद थे। बड़े पते की बात है। उन्होंने पूछा, कौन से दो लफ्ज हैं? कहा, एक खिलाफत है और दूसरा जिहाद है। ये दो वर्ड को हम इतना स्पॉइल कर देंगे, इतना भयानक बना देंगे, आइंदा कभी ये दो वर्ड कोई बोलेगा तो उसे जेल भेजने जैसी हालत बना देंगे। आज यही है, जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करो तो ये कहेंगे आतंकवादी है, खिलाफत का लफ्ज इस्तेमाल करो तो ये कहेंगे ये भड़काऊ है, खिलाफत कायम करना चाह रहा है, शरिया रौल कायम करना चाह रहा है, ये प्रोपेगेंडा फैला देंगे। ये मेरे अजीजों पिछले 100 साल से चल रहा है। और मुसलमान कंट्रीज जो हैं, मैं तो हिंदुस्तान में हूं, यह सबका मुल्क है, सारे लोग यहां पर हैं, मैं उन मुसलमानों के मुल्कों की बात कर रहा हूं, वहां पर भी खिलाफत की बात करने पर मुसलमानों को जेल में भेजा जाता है। हां, कोई करके दिखा दे। सऊदी अरब में अगर कोई कह दिया कि खिलाफत इस्लामिया जैसी थी वैसे होनी चाहिए, उसे जेल भेज दिया जाएगा ना, बादशाहत चलेगी, एक ही खानदान रोलिंग करेगा, दूसरे का किसी का हक नहीं होगा। जबकि खिलाफत ऐसी नहीं, अगर खिलाफत होना था ऐसे ही, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में अपने खानदान वाले को जानशीन बना देते। उम्मत के ऊपर छोड़ा, उम्मत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को चुना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के उस वक्त 3 बेटे मौजूद थे, वो खलीफा इस्लाम अपने बेटों को जानशीन बना देता, जैसे सज्जादा नशीन चलते हैं। पीर साहब के बाद बेटा तख्त पर बैठता है, आज भी ये निजाम है दरगाहों का। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कोई बेटा सज्जादा नशीन नहीं बना, बल्कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके यहां खिलाफत आई। हजरत उमर जब आखिरी वक्त में थे, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं और जलीलुल कद्र सहाबी हैं, जिनसे कसीर हदीसें मरवी हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 सहाबा को बुलाया और कहा, ये 6 में से किसी को चुन लेना, खबरदार मेरे बेटे को खलीफा नहीं बनाना। ये इस्लाम नहीं है, यहां पर विरासत में खिलाफत नहीं चलती, विरासत में ये जानशीनी नहीं है, बल्कि उम्मत में जो सबसे ज्यादा परहेजगार है वो हमारा कायद है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो हमारा रहनुमा है। उम्मत ने इसी तरह रखा। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी खानदान वाले मौजूद थे। आपने अपने खानदान में से किसी को अपना खलीफा मुंतखब नहीं किया, बल्कि ये खिलाफत
जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ गए थे उम्मत के ऊपर, ऐसे ही हजरत उस्मान भी जाते वक्त उम्मत के हवाले कर गए और सारी उम्मत ने उस शेर खुदा को चुना जिसकी क़ियादत में किसी को शक नहीं था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये खिलाफत के मामलात थे, लेकिन आज किसी भी इस्लामी नाम की कंट्री में ना खिलाफत कायम है, ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मिनहाज, वो तरीका कायम है। नाम के लिए ये जुब्बे कुब्बे पहन करके इस्लामी कहलाते हैं, लेकिन हकीकत में अंदर से कुछ भी नहीं है। अजीज़ान गिरामी, इसी बात का अफसोस है कि उम्मत पिछले 100 साल से बगैर कायद के है, बगैर खलीफा के हैं। दूसरा लफ्ज़ जिहाद, जिससे इनको चिढ़ है, तकलीफ है। मेरे अजीज़ों, यह एक पाकीज़ा लफ्ज़ है, सेल्फ डिफेंस का नाम है। मैंने इससे कबल भी इसके मुतालिक काफ़ी कुछ कहा है। जिहाद के अपने शराइत हैं। जिहाद उसको ना कहो जो अपने आप पर बम बांध करके कहीं नाहक लोगों को उड़ा देता हो, वह जिहाद से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरे अजीजों, जिहाद के जो रहनुमा उसूल हैं वो पढ़ करके देख लो। मैं समझता हूं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात जिहाद आज दुनिया की किसी जंग करने वाली कौम में मौजूद नहीं, किसी में भी नहीं। ये जिस मुल्क पर उतरते हैं सब उजाड़ करके चले जाते हैं। जो ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा बात करने वाला अमेरिका जिस मुल्क में उतरता है उल्लू से भी ज्यादा तबाही मचा करके जाता है, पूरी पूरी जमीनें वीरान बंजर करके चले जाते हैं। लेकिन याद है आपको तालीमात रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया अपने सहाबा को, अगर जंग की नौबत आ जाए, पहले तो हुजूर का फरमान ये सुने, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम। हुजूर फरमाते कभी भी जंग करने की तमन्ना मत करना। ये मेरे आका के फरामीन है, कभी भी दुश्मन से मुठभेड़ होने की, जंग करने की तमन्ना ना करना। फ़इज़ा लक़ीतुम, हां अगर आ पड़ी जंग ऐसे, तब फिर हुजूर ने फरमाया कि क्या क्या करो। फरमाया है मुजाहिदीन, जब तुम किसी जमीन पर उतरो तो वहां के दरख्तों के पत्ते ना उखाड़ो, वहां की औरतों को टच ना करो, घरों में बैठी हुई माओं को और उनके बच्चों को ना उठाओ, बड़ी उम्र वालों के साथ जंग ना करो, उन्हें माफ कर दिया करो। आज अगर ये उसूल किसी भी कंट्री के पास मौजूद हैं तो हमें बताएं। 2 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर 2 सेकेंड। इनमें हिलाकतें कितनी हुई, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क में कितनों को मारा है, एक लिस्ट जाकर के आप इंटरनेट में देखें। करोड़ से ज्यादा लोगों को हिलाक किया गया और शहरों पर जो बम मारे गए, तकरीबन आज 70 साल हो गए। 2 शहर ऐसे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें न्यूक्लियाई बम डाले गए थे, आज तक वहां जमीन में सब्जा नहीं उगता। ये ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले अलमबरदार लोग हैं, जो जमीन को 70 साल से बंजर करके रखा है। इस्लाम ने कभी ऐसे जिहाद का हुक्म दिया ही नहीं। हम तो जिहाद का लफ्ज जो है इस पवित्र और मुकद्दस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आज हर दुनिया के हर इंसान को जरूरत है। सेल्फ डिफेंस का नाम है, सेल्फ डिफेंस का नाम है। तुम्हारे ऊपर कोई आफत आ गई तो क्या तुम अपने आप को नहीं बचाओगे? अपने आप को बचाना, अपने दीन को बचाना, अपनी कौम को बचाना, इसका नाम जिहाद है। लेकिन ये 2 लफ्ज ये हमारी जुबानों पर आने देना नहीं चाहते, इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जलील हो जाएगी। कब? हदीस का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। मेरी उम्मत जलील हो जाएगी जब ये जिहाद को तर्क करे और खेती बाड़ियों में लग जाए। जिहाद का मतलब है अपने हुकूक का मुतालबा करना छोड़ दे, अपने हुकूक का मुतालबा करना छोड़ दे। आज अपने हक मांगने के लिए भी लोग ये कहते हैं ये भड़काऊ है। अपने हुकूक अगर मांगे जाएं तो ये कहते हैं भड़काऊ भाषण है। गालिबन पिछले ही जुमा के मुतालिक मैंने कमजोर तबके के लोगों के मुतालिक बात की। हिंदुस्तान में दलित बिरादरी के साथ आज भी नाइंसाफियां हैं। इसको न्यूज चैनल ने, इंडिया का एक बड़ा न्यूज चैनल जिसको फेकू न्यूज कहा जाता है, मेरी तकरीर चला करके यूं कहता है कि भड़काऊ मौलाना है।
یہ کمیونٹی میں لڑانا چاہتے ہیں. یعنی تم اپنے سٹیج پر سے یہ کہو گولی مارو تو کوئی بھڑکاؤ بات نہیں, اور اگر ہم کمزور طبقے کے لیے انصاف کی بات کریں تو بھڑکاؤ بات ہے. عزیزان گرامی, بہت دیر سے چپ رہے, اس کی سزا یہ ہمیں آج مل رہی ہے. بہت دیر سے تم خاموش رہے, اس کی سزا یہ آج ہمیں مل رہی ہے. ہم اپنے حقوق نہیں مانگ رہے. میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں, ممبئی کی سرزمین پر آج 7 مہینے ہو گئے مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں, اللہ کے گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں. کس نام سے؟ ایک بیماری کے نام سے. بیماری کا تو وہاں پر حال ایسا ہے کہ سارے لوگ تو حال میں ہیں بالکل. ہاں, ساری مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں. اب تو ریسٹورنٹ کو, بار کو, سب کو اجازت ہے, کیونکہ اس سے گورنمنٹ کا نفع ہے. مسجدوں سے کچھ جاتا نہیں, اس لیے بند کر کے رکھا گیا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ بند کر کے رکھی, لیکن تمہیں کیا بات سوجی ہے جو تم آج تک خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ اور یاد رکھو, جب تمہیں احساس بھی نہیں مسجدوں میں جانے کا, تو پھر اس طرح کی بابری مسجدوں کے شہید ہونے کی فکر بھی مت کرو. جب تمہیں احساس ہی نہیں رہا تو مسجدیں ٹوٹتی رہیں گی. تمہیں کیا اس بات کا, تمہیں کس بات کا غم ہوگا؟ عزیزان گرامی, میں یہ سخت جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے حقوق مانگنا ہی چھوڑ چکے ہیں, اور ہمارا کوئی قائد نہیں رہ گیا. اور جس کو ہم بناتے ہیں وہ ہماری قوم کو بیچ کر کے آتا ہے, رات میں بیٹھ کر کے جا کر کے بیچ آتا ہے. صرف سفید کرتا سفید پیجامہ پہننے کا نام لیڈر اور قائد نہیں ہوتا. میرے عزیزو, اللہ